الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و نبینا و شفیع المذنبین ورحمت للعالمین و ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد سبحان سید الشہداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا اور ہماری ہدایت کے لیے 12 اماموں کو بھیجا۔ تمام تعریف، تمام ستائش اس معبود کے لیے ہے کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب کو بھیجا۔ پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ خداوند عالم کہتا ہے اگر میری مدد چاہتے ہو تو پہلے تم میری مدد کیا کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور عزیزان محترم، جب ہم اس کے دین پر عمل کریں گے، جب واجبات پر عمل کریں گے، حرام سے بچ کے رہیں گے، تب کہا جائے گا کہ ہم نے خداوند عالم کے دین کی مدد کی، ہم نے اس کی مدد کی۔ دین اسلام پر جب ہم چلیں گے تب خداوند عالم کی دین کی نصرت کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں گے۔ اور عزیزو، اگر ہمیں جاننا ہے کہ دین اسلام آخر ہے کیا، صحیح اسلام کون سا ہے، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم دین اسلام کا جو علم ہے، علم دین ہے، اسے حاصل کریں۔ کل کی مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ علم دین حاصل کرنے کا ثواب کیا ہے، قیامت کے دن اسے کتنا بہترین اجر ملے گا، اور جو علم دین حاصل کرتا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں، زمانے کے امام کی نظر میں وہ کتنا محترم ہو جاتا ہے۔ آئیے عزیزان محترم، جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، جب انسان یا تو طالب علم بنتا ہے یا تو عالم بن جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اب اس کے پاس علم آ چکا ہے، اس کی نمازیں بہترین نمازیں ہو جائے گی، اس کے اعمال بہترین ہو جائیں گے، اس کو وضو، اس کا سجود، اس کے روزے، اس کے حج، خمس و زکوٰۃ بہترین ہو جائیں گے، اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس علم آ چکا ہے۔ اب تک اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ غلطیاں کرتا تھا، لیکن آج چونکہ اس کے پاس علم آ چکا ہے وہ غلطیاں کم کرے گا، اس لیے شیطان اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ شیطان کیا کرے گا؟ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، شیطان کے اندر ایک غرور آ جاتا ہے، ایک تکبر آ جاتا ہے، جسے ہم اپنی لینگویج میں گھمنڈ کہتے ہیں۔ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں سب سے سپیریئر ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ مجھ سے کمتر ہے، وہ میرے جتنا علم نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت نے اس بات کے لیے بہت مذمت کی ہے،
हमारे पास किसी भी तरह का ओहदा आ जाए, पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, खूबसूरती हो, शोहरत आ जाए, पोजीशन मिल जाए, दुनियावी इल्म आ जाए या दीनी इल्म आ जाए, अइम्मा-ए मासूमीन अलैहिस्सलाम कतई ये पसंद नहीं करते हैं कि इंसान अपने आप के लिए प्राउड फील करे, इंसान अपने आप को कुछ समझे। जब इंसान के अंदर अना आ जाती, अना यानी मैं कुछ हूँ, तो उसके तमाम अमाल ज़ाया हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया तमाम अखलाक में सबसे बेहतरीन अखलाक तवाज़ो है। सबसे बेहतरीन खूबी इंसान के अंदर पाई जानी चाहिए तो वो तवाज़ो होना चाहिए, क्योंकि तवाज़ो के अंदर सब कुछ है। अगर इंसान के पास तवाज़ो होगा, इंसान कभी तकब्बुर नहीं करेगा, इंसान अपने आप को हकीर समझेगा, उसकी नजर में मोमिनों की अहमियत होगी, उसकी नजर में मोमिनों की इज्जत होगी, क्योंकि वो अपने आप को हकीर समझता है, उसके पास तवाज़ो है। तवाज़ो यानी गुजराती में जिसे हम नम्रता कहते हैं। अगर इंसान के पास तवाज़ो है, उसके पास तकब्बुर नहीं होगा, इंसान दूसरे मोमिनों को इज्जत देगा, दूसरे मोमिनों की कद्र और मंजिलत को समझेगा, दूसरे मोमिनों की फजीलत को जानते हुए अपने आप को हकीर समझेगा। यहाँ तक कि इंसान कभी दूसरे इंसान का ये सोचकर मजाक नहीं उड़ाएगा कि मैं अफजल हूँ, तुम कमतर हो। बहुत से गुनाह इस इंसान छोड़ देगा जब खुद के अंदर वो तवाज़ो की सिफत को अपना लेगा। बहुत से गुनाह दूर हो जाएंगे उसके अंदर। इंसान रियाकारी से बच जाएगा जब उसके अंदर तवाज़ो होगा, समझेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक गुनहगार हूँ। तो इंसान क्या सोचकर दूसरों को इबादत दिखाएगा, रियाकारी से बच जाएगा, इंसान के अंदर खुलूस आ जाएगा और बहुत सी नेकियां इंसान इसी वजह से करने लगेगा, क्योंकि उसके पास तवाज़ो है। मोमिनों की इज्जत करेगा, सिले रहम करेगा, वालिदैन की फरमाबरदारी करेगा और बहुत से गुनाह इंसान छोड़ता चला जाएगा। और याद रखना, जब इंसान के पास तवाज़ो आ जाता है, हमारे आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे रसूल फरमाते हैं कि जब इंसान के पास तवाज़ो होगा और अगर वो कितना भी दूर दराज में, मिसाल दी रसूल ने कि अगर कुएं के तह में भी होगा, यानी कुएं के आखिरी हिस्से में भी होगा, तो खुदावंद आलम क्योंकि उसके पास तवाज़ो है, वो परवरदिगार आलम लोगों के दरमियान उसे मशहूर कर देगा। लोग उसकी इज्जत करेंगे, लोग उसका एहतराम करेंगे। हालांकि वो खुद को तो बहुत गिरा हुआ, बहुत कमतर समझता है, क्योंकि अल्लाह को ये सिफत इतनी पसंद है। खुदाई अल्लाह के रसूल कहते हैं चाहे वो कुएं के आखिरी तह में भी होगा, लेकिन परवरदिगार आलम लोगों के दरमियान उसकी इज्जत को बढ़ाएगा, लोगों के दरमियान उसे मशहूर कर देगा। अजीजान मोहतरम, जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में है, इज्जत देना अल्लाह के हाथ में है। जब इंसान अपने आप को हकीर समझेगा, खुदावंद आलम खुद ब खुद लोगों के दरमियान उसकी इज्जत को बढ़ाता चला जाएगा। हम अपनी इज्जत बढ़ाए खुद से और अल्लाह अपनी जानिब से हमारी इज्जत बढ़ाए, उसमें कितना फर्क है अजीजान मोहतरम। वो अल्लाह जो इज्जत देगा वो हमेशा बाकी रहने वाली इज्जत होगी। बस तवाज़ो की सिफत को हम अपनाए, तवाज़ो होगा तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। और छठे इमाम ने कहा कि कुछ निशानियां हैं तवाज़ो की। अगर अपने आप में तवाज़ो को लाना है, इमाम कहते कि ये देखो कि क्या तुम इन चीजों को पसंद करते हो, क्या तुम ये चीजों को करने के लिए तैयार हो जाओगे। सबसे पहली चीज इमाम ने कहा कि जब महफिल में जाओ, मजलिस में जाओ, अगर तुम्हें लास्ट में आखिरी में बैठने की जगह मिले तो उसे पसंद करो। जहां पर भी जगह मिल जाए वहां पसंद करो कि हाँ मैं यहीं बैठूंगा। कोई स्पेशल पोजीशन के लिए, कोई स्पेशल जगह के लिए हम आगे आकर, खास अगर आकर बैठते हैं तो इमाम कहते हैं ये तवाज़ो से ऑपोजिट है। अगर देखना है या अगर अपने अंदर तवाज़ो की सिफत को लाना है तो जहां पर भी महफिल में, मजलिस में जगह मिले वहां बैठ जाओ। ये पहली सिफत है। दूसरी सिफत इमाम कहते हैं इंसान को चाहिए कि सलाम करने में पहल करे। जो भी मिले, जो भी मोमिन मिले,
सलाम करने में पहल करे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। हर इंसान के साथ जब भी मिले सलाम में पहल करे। ये तवाज़ो के लिए दूसरी सिफत इमाम ने बयान की। फिर इमाम कहते हैं तीसरी बात, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हारी बात सही है, तुम्हें पता है कि तुम जो बात कह रहे हो वो सही है, लेकिन सामने वाला तुमसे बहस कर रहा है, इमाम कहते हैं तवाज़ो की सिफत के लिए इंसान को चाहिए कि उस बहस को वहीं पर खत्म करे, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए बहस ना करे। कभी होता है हमारे साथ ऐसा, हम सही है, मुझे पता है कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सही है, लेकिन सामने वाला मानने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या करते हैं? दलील पर दलील पेश करते हैं, उसके साथ बहस करते हैं। इमाम कहते हैं नहीं, तवाज़ो जिसके पास होगा वो अपनी दलील को वहीं स्टॉप कर देगा, भले वो सही है लेकिन वो बहस नहीं करेगा। सामने वाले इंसान की इज्जत को, सामने वाले इंसान की कद्र और मंज़िलत को समझकर वहीं पर वो अपनी बहस को स्टॉप कर देगा। तो इमाम ने ये सिफात बताई। और आखिरी सिफात इमाम कहते हैं कि जिसके अंदर तवाज़ो होगा, जब उसकी तारीफ की जाएगी, लोग जब उसकी तारीफ की जाएगी तो अपनी तारीफ को पसंद नहीं करेगा। बेशक इंसान का दिल है, अगर कोई तारीफ करता है तो इंसान को खुशी महसूस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तारीफ किए जाए लोग और हम खुश होते होते तारीफ सुनते सुनते हमारे अंदर एक प्राउड आ जाए, एक तकब्बुर आ जाए। तो इमाम ने कहा है कि तवाज़ो अगर लाना है तो इन सिफात पर, खुसूसन तौर पर इन निशानियों पर अमल किया जाए। और अजीज़ान मोहतरम, जो रसूल से इतने करीब होते थे, जो रसूल के सहाबी हुआ करते थे, वो कितना डरते थे कि कहीं हमारे अंदर तकब्बुर ना आ जाए। उनके अंदर तवाज़ो की सिफत इतनी बेहतरीन थी कि वो हमेशा डरते थे कि हमारे अंदर प्राउड ना आ जाए। जनाबे वैसे करनी, इंशाल्लाह जनाबे वैसे करनी का वाकया कल या परसों की मजलिस में डिटेल से, आज सिर्फ मैं जो मेरे मौजू से ताल्लुक है उसके लिए मैं बयान कर दूं। जनाबे वैसे करनी वो सहाबी है कि जिनको जंग सिफ़ीन में शहीद किया गया। जनाबे वैसे करनी जंग सिफ़ीन में मारे गए। एक मर्तबा जनाबे वैसे करनी के बारे में मिलता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा नमाज जमात पढ़ाई, एक मर्तबा, पेश इमाम सिर्फ एक मर्तबा हुए। जनाबे वैसे करनी कहते हैं कि जब मैं नमाज जमात पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, मैंने नमाज जमात पढ़ा ली, उसके बाद जब मैंने मुड़ कर देखा तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि आज मैंने नमाज जमात पढ़ाई, मैं पेश इमाम था, लोगों ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी। जैसे ही ये शैतान का वसवसा आया, वैसे करनी ने अपने दिल को टटोला कि ये तू क्या सोच रहा है, तेरे अंदर प्राउड कैसे आ गया। उसी दिन से जनाबे वैसे करनी ने ये तय कर लिया कि आज के बाद नमाज जमात नहीं पढ़ाऊंगा, नमाज जमात पढ़ाऊंगा तो शैतान मेरे दिल में वसवसा डालेगा। ये होती है उनके पास जो रसूल इस्लाम के करीब होते हैं, जो इताअत करते हैं, उनकी मारिफत और उनका ईमान इतने बुलंद दर्जे पर होता है कि रिवायत कहती है कि सिर्फ एक मर्तबा जिंदगी में नमाज जमात पढ़ाई। इसी तरह से मोहम्मद हुसैन तबातबाई, आपने सभी ने इस आलिम दीन का नाम सुना होगा। मोहम्मद हुसैन तबातबाई के बारे में मिलता है कि वो कभी नमाज जमात नहीं पढ़ाते थे। जब लोग जमा हो जाते थे, नमाज का वक्त होता था, जब लोग उनसे इसरार करते थे कि आप आइए नमाज जमात पढ़ाइए, उनके स्टूडेंट साथ होते थे, तो आका मोहम्मद हुसैन तबातबाई मना करते थे, किसी भी अपने तालिबे इल्म को आगे कर देते कि जाओ तुम जाओ और तुम नमाज जमात पढ़ाओ। और जब उन्होंने देखा कि जब नमाज का वक्त होता है, हम सब साथ होते हैं और लोग मुझे फोर्स करते हैं नमाज जमात के लिए, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया। क्या किया? उन्होंने तय किया कि नमाज का वक्त हो, तमाम लोग आ जाए और तमाम लोग उनका वेट करते करते जब नमाज का वक्त दाखिल हो जाता था, कोई भी एक तालिबे इल्म, उनमें से एक तालिबे इल्म जो होता था वो आगे आकर नमाज जमात पढ़ाना जब शुरू कर देता था, मोहम्मद हुसैन तबातबाई धीरे से आकर पीछे आकर खड़े होकर नमाज जमात पढ़ लिया करते थे कि अगर पहले जाऊंगा तो लोग मुझे फोर्स करेंगे नमाज जमात पढ़ाने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि मेरे अंदर ये तकब्बुर आ जाए, ये गुरूर आ जाए कि मैं पेश इमाम और लोग मेरे पीछे नमाज जमात पढ़ते हैं, इसलिए पहले आते ही नहीं थे, उन्होंने छोड़ ही दिया जल्दी आना। वो ये करते थे कि लास्ट में आते थे, जब नमाज शुरू हो जाती तो धीरे से आकर पीछे खड़े होकर
जो इमाम होता था उसके पीछे नमाज जमात अदा कर लिया करते थे। ये आलिम दीन है क्योंकि इल्म इतना, मारिफत इतनी, परवरदिगार आलम के इतने महबूब बंदे होते थे कि वो कभी अपनी पॉपुलैरिटी नहीं चाहते थे, कभी नहीं चाहते थे कि उनके तकब्बुर आ जाए, उनके अंदर गुरूर आ जाए। अजीज़ान मोहतरम, इसी तरह से मुक़द्दस अर्दबेली की वाक़यात, जिंदगी के वाक़यात बहुत सारे हैं, लेकिन एक मर्तबा मुक़द्दस अर्दबेली के पास एक ज़ाहिर आता है और आने के बाद कहता है शख्स मेरे कपड़े धो दो। ज़ाहिर था, इमाम की ज़ियारत के लिए आया था, मुक़द्दस अर्दबेली वहाँ पर मौजूद थे। आकर ज़ाहिर कहता है कि शख्स मेरे कपड़ों को धो दो, बहुत गंदे हो गए। मुक़द्दस अर्दबेली ने खुशी खुशी कहा लाओ आपके कपड़ों को दे दो, मैं आपके कपड़े धो कर दूंगा। अब मुक़द्दस अर्दबेली उस ज़व्वार के कपड़ों को धोने के लिए बैठ जाते हैं। जब लोगों ने ये माजरा देखा, लोग आकर उस शख्स से कहने लगे कि तूने जिसे कपड़े धोने के लिए दिए हैं, क्या तू जानता है वो कौन है? उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ, मुझे नहीं मालूम ये शख्स कौन है, मैंने तो उसे ऐसे ही मुफलिस समझकर दे दिए कपड़े धोने के लिए। लोगों ने उसे कहा कि ये कोई और नहीं, मुक़द्दस अर्दबेली है, ये आलिम दीन है। जैसे ही सुनना था कि ये मुक़द्दस अर्दबेली है जिनको मैंने अपने कपड़े धोने के लिए दिए हैं, दौड़ा दौड़ा आता है, हाथों को जोड़ता है, आलिम दीन मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुक़द्दस अर्दबेली है, प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो कि मैंने अपने कपड़े आपको धोने के लिए दिए। मुक़द्दस अर्दबेली मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद कहते हैं भाई इसमें गिल्टी क्यों फील करता है, क्यों अपने आप को कोस रहा है, क्यों माफी मांग रहा है? एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर इतना हक है कि ये कपड़े तो कुछ भी नहीं है, कपड़े धोने से कई ज्यादा हक एक मोमिन दूसरे मोमिन पर रखता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे आलिम दीन जो होते थे उनके पास ऐसा तवाज़ु होता था, उनके पास ऐसी इंकिसारी होती थी, कभी नहीं चाहते थे कि उनके अंदर प्राउड आ जाए, तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए। बस हम भी कोशिश करें, जिंदगी में इंसान के पास, किसी भी इंसान के पास कुछ ना कुछ खूबियां तो जरूर होती है। या तो किसी के पास खूबसूरती होती है, किसी के पास इल्म होता है, किसी के पास दौलत होती है, किसी के पास शोहरत होती है, कुछ नहीं तो इंसान में, औरतों में कभी कभी ये पाया जाता है कि अच्छा खाना पका लेती है। कोई भी खुसूसियात, दुनियावी इल्म है, दीनी इल्म है, या किसी भी चीज में इंसान माहिर होता है, तो इंसान के अंदर एक फितरत है कि उसके अंदर गुरूर आ जाता है। वो समझता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और वो चाहता है कि लोगों के दरमियान मेरे चर्चे हो, लोग मेरी वाहवाह करें। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, जब लोग अब हमारी वाहवाह करेंगे, हमारे चर्चे करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक प्राउड आ जाएगा, एक गुरूर आ जाएगा। जब भी कोई हमारी तारीफ करे या जब भी हम खुद सोचे कि हाँ आज मैंने ये अच्छा काम किया है, आज मुझे पोस्ट मिल गई, आज मेरे पास ये डिग्री आ गई, आज मेरे पास पैसा आ गया, आज मेरे पास ये शोहरत आ गई, बस उसी वक्त दिल में ये ख्याल करे कि इस शोहरत का देने वाला, इस खूबसूरती का देने वाला, इस पैसे का देने वाला वो माबूद है। अगर उसने मेरे जिस्म में कुव्वत न दी होती तो आज मैं इस